It is still the men's round of 16, best of 5. Jain University of Karnataka will be taking on Dibrugarh University of Assam. We are coming to you live from Cuttack. It's the Khelo India University Games. That is the lineup for you. We start off with Nikhil Sham Sriram versus Tarit Ranjan Das. Number 1 seeds in the men's category in the team championships is Jain University of Karnataka. They will be starting as favourites. We'll move on, of course, to another singles match before we have 2 doubles and a singles game sandwiched between those two. That is Nikhil Sham Sriram on your screen from Jain University. As I said, they are seeded 1. So if Dibrugarh University of Assam, which is represented in this match by Tarit Ranjan Das, have to put them under pressure, they will have to start on the front foot right away. Moments away then from the start of the first match. Ladies and gentlemen, on my right, Jain University Karnataka represented by Nikhil Sham Sriram, and on my left, Dibrugarh University Assam represented by Tarit Ranjan Das. Dibrugarh University Assam to serve. Love all. Play. Service over. Good strong point to start with for both the players. And first points on the board for Nikhil Sriram. Oh, comes right back into it. Tarit Ranjan Das. This is a good start by both the players. 1-1. He's the taller of Service the two. Is Nikhil Sham Sriram. 2-1. Get a natural advantage in badminton. You get a better leap. You get a better range. Like many other sports, volleyball, basketball, 3-1. बेहतर स्पाइकर या बेहतर सेंटर प्लेयर बन सकते हैं. कोर्स इस तरह के स्पाइक्स वॉलीबॉल में अगर आप देखते हैं तो स्मैशेस बैडमिंटन में देखते हैं. हर एक खेल Service over. स्टार स्पोर्ट्स आपके लिए लेकर आएगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में. Extremely attacking start by both the players. 3-2. One of them needs to focus on their defense better to have a real advantage. 4-2. 4-2 now for Nikhil Sham Sriram. Left one side of the court completely open there. That is great setup. That is really good setup there by Nikhil Sham Sriram at the net. Beautiful drop, inviting Tarit Ranjan Das forward and set up the winner. Back-to-back points. It's 6-2 now. 6-2. It's a 4-point lead. It's a healthy lead for Nikhil Sham Sriram. कोर्ट कवरेज दोनों प्लेयर्स का लाजवाब है सिड. 7. शायद इसी तरह के जो अनफोर्स्ड एरर है वही इस मैच का रिजल्ट तय करे. लेकिन 5 पॉइंट की शुरुआती लीड, ये बेहतर शुरुआत है निखिल के लिए. दूसरी या तीसरी बार हो चुका है यहाँ पर. तरित रंजन दास कोर्ट का एक साइड पूरा खुला, पूरा खाली छोड़ देते हैं और निखिल शाम श्रीराम he punishes him. Needs to defend better here, Tarit Ranjan Das. He's working hard. Again, the disguise and the deception on the net play. Absolutely excellent by Nikhil Sham Sriram.
Look at that net. Inviting Tarit Ranjan Das, and he just could not get that over. 9-2. It's a 7-point lead for Nikhil Shamshriram. टेक्निक के मामले में तरित रंजन कहीं भी कमजोर नहीं दिखे हैं, लेकिन यहाँ देखिए जजमेंट का इतना बुरी तरह से अभाव, ये चीजें हैं जो आपको जीतने से वंचित रखती हैं। 11-2 लग रहा था कि बड़ा करीबी मुकाबला होने वाला है, लेकिन मिड गेम इंटरवल में एक तरफा ट्रैफिक दिख रहा है। Absolutely, it's 11 minutes. 11-2, I beg your pardon. It's taken us 4 minutes to reach the mid-game interval. Nikhil Shamshriram has worked up a commanding lead. Rest of the game coming your way after a very short commercial break. Lovely Professional University. निखिल, वेलकम बैक। हम भुवनेश्वर से कटक में आ चुके हैं। अगर आपने अभी अभी हमें ज्वाइन किया हो, सुबह वॉलीबॉल देखा, बास्केटबॉल देखा, अब बैडमिंटन पर हमारी नजर है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की विमेन्स टीम ने अपना टाई जीता है और दूसरा टाई हम देख रहे हैं मेंस मुकाबलों में। जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटका के सामने है डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी असम। University of Mumbai. Needs to avoid that unforced error there by Tarit Ranjan Das. He's gifted away a point to Nikhil Shamshriram, who's already in a commanding position in this game and in this match. Service over. 4-12. 4-12. Service over. Much better. Much better 4. by Tarit Ranjan Das. Unfortunately, he could not get the point there. But he's been playing well, and he needs to do more of that. Convert those winners. 5-13. Superb defense by Tarit Ranjan Das. Service over. 14-5. This is what Nikhil Shamshriram has been able to do so well. Even when he's not dominating the point, he still comes up with a way to win that point. Service over. शायद थोड़ी सी कंप्लेसेंसी थी 6, इस 14. बैकहैंड रिटर्न में। होता है जब आप 8-9 पॉइंट से आगे हों तो हर एक शॉट में 100% कई बार प्लेयर नहीं दे पाते। Service over. He's just 15, not allowed 6. Tarit Ranjan Das to work up any sort of a momentum here. Wins the point right back. 16-6. 16-6. This is a big lead. That's gone over, and everything going his way 17, and the way of Jain 6. University. Manager, coaches. Unfortunate for Tarit Ranjan Das, but nothing unfortunate about that. University of Mumbai. He is reading the play so well here, Nikhil Shamshriram. 18-6 now for him. Collect your pricing. अब तक जितने बैडमिंटन के गेम हमने आज देखे हैं, सिर्फ ये तीसरा है। 19-6. हारने वाले प्लेयर ने मैक्सिमम 6 पॉइंट बनाए हैं अब तक, विच इज नॉट गुड टू सी। क्या कमाल की प्रेजेंस ऑफ माइंड है
एक चैंपियन खिलाड़ी की तरह निखिल श्याम श्रीराम को पता है 6. कि कहां से गेम पॉइंट लेना है। पहले राइट में धकेला, उसके बाद लेफ्ट में स्पेस मिला, क्रॉस कोर्ट। Game. Takes the first game, and Jain University take the first game as well. First game won by It's taken Jain all University, of Karnataka, 8 minutes. 21-6. Jain University of Karnataka has won the first game. Nikhil Sham Shriram has put in a very good display here against Tarit Ranjan Das, who's not played badly to be honest, but Nikhil Sham Shriram has just been that very good. His winners have been outright, they've been clean. And Tarit Ranjan Das has it all to do. 21-6 then for Jain University. The second game coming right up. Thank you, Mohappa. वेलकम बैक। स्टार स्पोर्ट्स पर आप देख रहे हैं Court 1, मेंस 20 टीम seconds. मुकाबले बैडमिंटन के, जो कि Court कटक 1, के 20 seconds. जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में हो रहे हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आज दूसरा दिन है और बैडमिंटन हम इन गेम्स में आपके लिए पहली बार लेकर आए हैं। बैडमिंटन आज ही शुरू हुआ है। पहले हमने विमेंस मुकाबले देखे जहां दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना टाई जीता। Second game. पहले दोनों मैचेस जीतकर उन्होंने महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज को 2-0 से हराया और अब जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटका के सामने है डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी असम। Service over. It's been called out, and Tarit Ranjan Das has taken the lead in the second game. He has to fight for every point. He started well in the first game as well. Good reach, but Nikhil Sham Shriram read that so well. 1 all. पहले बेस लाइन की तरफ भेजा और उसके बाद ये हल्का सा एयर पिन नेट शॉट, 1 ऑल। 2-1. That is what I was talking about. He should make Nikhil Sham Shriram work for every point. Tarit Ranjan Das. Lovely Professional University. Coaches and managers. Collector Tyson. ऑल आउट, तो 2 पॉइंट की लीड 3-1. निखिल श्याम श्रीराम के पक्ष में, जो कि पहला गेम 21-6 से जीते हैं। 6 से ज्यादा पॉइंट अब तक किसी भी हारने वाली Service over. प्लेयर या डुओ ने नहीं बनाए हैं जितने मैचेस हमने कवर किए हैं उसमें। 2-3. अच्छा, पिछले गेम की शुरुआत भी ऐसे हुई थी, सिर्फ 3-2 का स्कोर था और उसके बाद निखिल श्याम ने रैली बना दी पॉइंट्स की। Really good defense there by Tarit Ranjan Das. Excellent play by him. 4-2. 4-2 in favor of Nikhil Shriram though. पहले गेम में भी सुनील, तरित रंजन दास बहुत मेहनत की थी उन्होंने, मगर निखिल श्रीराम के विनर्स जो थे, एंटिसिपेशन जो था, कोर्ट कवरेज जो था, बेहतरीन था। बिल्कुल, गर्ल्स मुकाबलों में हमने देखा था कि एक तरह से ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी की टीम में दिखे थे। यहाँ डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के प्लेयर के टैलेंट में कोई कमी नहीं, लेकिन उनके विरोधी जो खिलाड़ी हैं इज मच मच बेटर। Service over. 5-3. It's still only 2 points. It's a close start to the second game, and Tarit Ranjan Das is still in it, very much in it. It's just 2 points. It's got to be careful though. It was around this point in the last game where Nikhil Shriram just took the game away from him. You said it, said 3-2 पिछले गेम में भी स्कोर था, उसके बाद एक तरफा बना दिया। 3-2 यहां भी था और अब देख लीजिए, इट्स 6-3 नाउ। It's so good to see he's keeping up the pace here. Is Tarit Ranjan Das. He's not 4-6. giving up. और बड़ा अच्छा लग रहा है, असम की डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी ने बैडमिंटन के मुकाबलों में क्वालिफाई किया है और खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बाद Service over. असम में जो खेलों का कल्चर है, 7. हम हमेशा 4. एथलेटिक्स के लिए या फुटबॉल के लिए असम को जानते थे। हॉकी में उनका रुझान हो रहा है, बैडमिंटन के प्लेयर्स यहाँ क्वालिफाई कर रहे हैं। बॉक्सिंग एक बड़ा स्पोर्ट है असम में। 5-7. Service over. Managed to keep it at 2 or 3 points here, Tarit Ranjan Das.
It's a much tighter second game. Nikhil Sriram has also managed to keep it in the lead. थोड़ा प्रेशर दिख रहा है तरित रंजन दास पर। अच्छा डिफेंस कर रहे थे इस रैली में, हालांकि डोमिनेट नहीं कर रहे थे, लेकिन जो बैक हैंड रिटर्न उनका गया बड़ा फीबल, बड़े अधूरे मन से। Now for Nikhil Sriram. Jain University have won the first game thanks to this boy on your screen. और उसके बाद जो दूसरा मैच होना है सेड, जैन यूनिवर्सिटी को डेनियल एस फरीद रिप्रेजेंट करेंगे, जो भारत को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं। नो वंडर्स, जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटका टॉप सीड है मेंस टीम इवेंट में। He's still in this, Tarit Ranjan Das. He's not allowed Nikhil Sriram to get away, though Nikhil Sriram has maintained his lead. Working so hard in his defense here, Tarit Ranjan Das. आसानी से ये गेम नहीं जीतने दे रहे तरित रंजन दास निखिल श्याम श्रीराम को। लीड सिर्फ 2 की बची है। Really good rally. He's got to take this, Tarit Ranjan Das. सर्विस ओवर। जिस मोमेंट में आपने कहा से इंटरवल, मिड गेम इंटरवल, लीड जरूर निखिल श्याम श्रीराम के पास है, लेकिन बहुत सारा कॉन्फिडेंस मिला होगा तरित रंजन दास को इस रैली में। पॉइंट भले ही उन्होंने गवाया हो, लेकिन ये पॉइंट अर्जित करने के लिए उन्होंने निखिल श्याम श्रीराम को पसीना बहाने पे मजबूर किया है। Absolutely, no doubt about it. He's won the first game rather easily, but he's made to work. It's 11-8 in the second game. Everything to play for. We're going for a commercial break. We'll be right back after. Nikhil Sham Sriram has won the first game. He is leading in the second. Will he win this match by winning it with back-to-back games? He's leading Tarit Ranjan Das, a spirited opponent from Dibrugarh University, Assam, by 3 points. And this is an exciting game to watch. पॉइंट लेना डिजर्व करते थे तरित रंजन दास, जिस शिद्दत से उन्होंने वो रिटर्न दिया था, लेकिन जो बैक हैंड आया उसमें पावर थोड़ी ज्यादा थी। शो वेयर टू वाइप। फ्लोर को क्लीन करने की हिदायत दी गई है, इसीलिए अगली सर्विस से पहले ये छोटा सा ब्रेक लिया जा रहा है। तरित रंजन दास पहला गेम जिस तरह से गवाया था 21-6 से, दूसरे गेम में 4 ही पॉइंट से पीछे हैं, लेकिन जबरदस्त वापसी है उनकी। जी हाँ, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है उनका दूसरे गेम में। उम्मीद है आखिर तक लड़ेंगे। वो लीड 5 पॉइंट की हो चुकी है। निखिल श्याम श्रीराम जैन यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ पर। I love the way you said प्रतिनिधित्व करते हुए। 14-8। ये हिंदी का टंग ट्विस्टर है। थैंक्स सुनील। सर्विस ओवर। Stamping his mark here, 9, Nikhil Sriram. 14। But Tarit Ranjan Das is just not going away. It's a best of 5, remember? It's the men's team championships. In the girls, it was a best of 3. DU won 2 matches back to back. They made it to the round of 8. This is the first match of 5 for the boys. और पहला मैच जो है वो क्या 3rd गेम तक जाएगा 14 या इस दूसरे गेम में ही
निखिल श्याम श्रीराम इस मैच को अपने नाम कर लेंगे. We'll have to wait and see. सर्विस ओवर. याद रखना होगा सुनील की तरित रंजन दास मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, मगर किसी भी वक्त पर ना उन्होंने निखिल श्रीराम की बराबरी की है, ना कभी लीड ली है मैच में. But this is the best any player has scored so far. 11 points. इससे पहले हमने सर्विस ओवर. 4 गेम्स देखे हैं गर्ल्स कैटेगरी में. 12, 15. दोनों मैचेस 2-2 गेम में खत्म हुए. 6 और 4 मैक्सिमम स्कोर रहा हारने वाली टीम का, और यहां सिर्फ 3 पॉइंट्स का मार्जिन है. वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कमबैक बाय द बॉय फ्रॉम डिब्रूगढ़. और ये है स्ट्रॉन्ग जबरदस्त क्रॉस कोर्ट स्मैश. 16. Not just the best game, but the best bit of badminton we've seen as well so far this afternoon. Excellent work there by Nikhil Sriram. निखिल बता रहे हैं ये आउट करार किया गया है. 17. डाउन द लाइन. इससे पहले उन्होंने क्रॉस कोर्ट स्मैश किया था, इस बार डाउन द लाइन करने की कोशिश थी. ड्रिफ्ट का इफेक्ट अब खत्म हो चुका है. कोर्ट की किस साइड में आप खेल रहे हैं इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अब. Beautiful, absolutely beautifully done there by Tarit Ranjan Das. We said this boy has talent and he is showing that. Look at that net play. How delicate was this touch at the net. Now, superb. And the angle he found. सर्विस ओवर. 18, 13. पर उनकी जो खुशी थी वो बड़े छोटे अंतराल के लिए उनको मिली थी. पॉइंट दूर हैं अब निखिल श्याम श्रीराम इस गेम को और इस मैच को जीतने के लिए. Going for the winner, does not get it. It crashes into the net. 14-19 for Dibrugarh University. 2 points away from taking the first match here. Jain University of Karnataka seeded number 1. सर्विस ओवर. मैच पॉइंट 20. मैच पॉइंट. अब जैन यूनिवर्सिटी के निखिल श्याम श्रीराम के लिए. सर्विस ओवर. उनके पास अभी भी 5 मैच पॉइंट्स हैं. 15, 20. Here comes the winner. 21-6 के बाद 21-15 से ही सही, थोड़ा ज्यादा पसीना बहाकर ही सही, निखिल श्याम श्रीराम ने दूसरा गेम जीता है और स्ट्रेट गेम्स में 2-0 से उन्होंने डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के तरित रंजन दास को हराकर पहला मैच अपनी टीम को दिलवा दिया है. जहां जैन यूनिवर्सिटी ने इस टीम चैंपियनशिप के मुकाबले में बढ़त ले ली है डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के खिलाफ. 1-0 की बढ़त बना ली है जैन यूनिवर्सिटी ने. 21-6, 21-15. तरित रंजन दास ने मेहनत तो बहुत की थी, मगर निखिल श्याम श्रीराम का जबरदस्त प्रदर्शन रहा है जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटका के लिए. बैक टू बैक गेम्स में उन्होंने मैच को जीत लिया है. डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी को अगला मैच जीतना ही होगा, वरना 2-0 से पिछड़ेंगे वो. डैनियल फरीद वर्सेस अभिषेक दत्ता. कई इवेंट्स में खेले हैं. डेनियल एस फरीद सामना करेंगे अभिषेक दत्ता का, जो कि डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, और इनकी बात कर रहे थे. ये हैं आपके सामने डेनियल एस फरीद. मेरे साथ मौजूद हैं सिद्धार्थ पांडे. Really looking forward to this one. Daniel S. Farid, a real talent for India, and Dibrugarh University have lost their first match, are 1-0 down in the tie, and Abhishek Datta will have it all to do here for the university from Assam. That's Abhishek Datta on your screen. He's up against one of our best junior players in the country, Daniel Farid. As the chair umpire for the match. चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे बैडमिंटन हो, जो फर्स्ट ऑफिशियल हैं, आप उन्हें फर्स्ट रेफरी कह लीजिए, फर्स्ट अंपायर कह लीजिए, चेयर अंपायर कह लीजिए, हमेशा हाइट पे होते हैं. सबसे अच्छा एंगल है उनके पास जज करने के लिए. और डेनियल एस फरीद ऑफ कोर्स
2017 पोलिश टूर्नामेंट जो हुआ था उसके क्वार्टर फाइनल तक ये पहुंचे थे। उसके अलावा भी बहुत सारे BWF इवेंट्स में इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो एक फेवरेट की तरह डेनियल एस फरीद जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटका के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। अभिषेक दत्ता एक अंडरडॉग की तरह शुरू करेंगे, लेकिन जिस तरह से इनके साथी तरित रंजन दास ने सेकंड गेम में चुनौती दी थी निखिल श्रीराम को, उम्मीद करते हैं कि अभिषेक दत्ता उनसे बेहतर प्लेयर साबित हों। Ladies and gentlemen, on my right, Jain University, Karnataka, represented by Daniel S. Farid. And on my left, Dibrugarh University, Assam, represented by Abhishek Datta. Dibrugarh University, Assam, to serve Abhishek Datta, love all, play. First points on the board for Jain University, and it is Daniel Farid who takes the point. Service over, 1 love. Trying for quite a few winners was Abhishek Datta, but Daniel Farid held his ground, waited for the opportune moment and got the winner himself. 2-0. यही एक चैंपियन खिलाड़ी की पहचान है। पहला मौका मिला इस रैली में स्मैश लगाने का डेनियल को और उसी ने पॉइंट दिलवाया। और अभिषेक दत्ता जो लगातार स्मैश करने की ट्राई कर रहे हैं, पता चलता है कि शुरू से ही प्रेशर में है। Needs to be patient. Can't get a winner in every point. Sometimes you need to create openings. 4 love. जैसी उम्मीद थी वैसी शुरुआत डेनियल फरीद ने अपने लिए की है। और सुनील, अगर ये मुकाबला 5वें मैच तक गया तो डैनियल फरीद हमें डबल्स मुकाबले में भी दिखेंगे। आखिरी मैच 5वें मैच में। बिल्कुल, इसके बाद जो तीसरा मैच होना है वो डबल्स मुकाबला है, जहां सैफ अली और गणेश विट्ठल जी जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटका की तरफ से खेलेंगे और चिन्मय बोरा और सरबता गुप्ता प्रतिनिधित्व करेंगे डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी का। उसके बाद चौथे या पांचवें मैच की नौबत आती है या नहीं, वो बाद में पता चलेगा। लेकिन यहां तो पहला पॉइंट लेने के लिए अभिषेक दत्ता तरस रहे हैं। Just over a minute in this match and it's 7-0 for Daniel Farid. He looks to be in a hurry. Abhishek Datta has got to stop this steam train. वेरी राइटली पॉइंटेड आउट बाय माय पार्टनर सेड 2 मिनट में 8 पॉइंट ले लिए हैं डेनियल फरीद ने, जो भारत को रिप्रेजेंट कर चुके हों उनके लिए यूनिवर्सिटी लेवल पर पहला राउंड, पहला मैच जीतना कितना आसान होगा वो इनकी बॉडी लैंग्वेज आपको बता रही है और स्कोर भी बता रहा है। डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी आसाम ने पहला पॉइंट अपना इस मैच में जीत लिया है। अभिषेक दत्ता, but it's gone straight back to Daniel Farid, who is representing Jain University. 9-1 in his favor. जबरदस्त बॉडी लाइन स्मैश 10 डेनियल फरीद की, जिसको खेलना सबसे मुश्किल काम होता है। उसको पोजीशन ही नहीं कर पाए थे अभिषेक दत्ता। ये विनर आएगा, पता था। 11-1 interval.
Less than 5 minutes, we have reached the mid-game interval in this match. Daniel Farid has run away with it. He's got a 10-point lead over Abhishek Datta of Dibrugarh University, Assam. They are a match down, and if they have to take this game, they need to work very, very hard. Second part of the first game of this match coming your way after a very short commercial break. वेलकम बैक। स्टार स्पोर्ट्स पर आप देख रहे हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स पहला एडिशन, दूसरा दिन। 11. सुबह हम भुवनेश्वर में थे, अब हम कटक में हैं। बिल्कुल पड़ोसी शहर हैं दो, और बड़े ही खूबसूरत शहर हैं। उतना ही खूबसूरत बैडमिंटन का खेल दिखाया है डैनियल फरीद ने, जो कि रेड एंड व्हाइट में है। खेल रहे हैं जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटका के लिए। Really good defense by Abhishek Datta. Unfortunately for him, he could not keep the rally going, and Daniel Farid has just won another point. तो जितने मैचेस किए थे डैनियल फरीद ने, उनको खूबसूरती से रिटर्न दिया, लेकिन आखिरी क्रॉस कोर्ट का जवाब नहीं था। 2-12. Daniel, you must pass the shuttle. जरूरी है डैनियल कि आप शटल पास करें अपने विरोधी को। और 11-1 हमने मिड गेम इंटरवल देखा था। अब तक का सबसे कमजोर स्कोर था वो किसी भी गेम में इंटरवल के समय। Superb, absolutely excellent by Daniel Farid. The deception on that drop shot was something to see. आप स्मैश करेंगे तो हम हल्के हाथों से बैक हैंड ड्रॉप लगा के पॉइंट लेंगे। जरूरी नहीं कि ताकत से ही आपको पॉइंट मिले, नजाकत से भी मिलते हैं। खूबसूरत रिस्ट वर्क वहां पर डैनियल फरीद का। कोशिश सफल रही इस बार अभिषेक दत्ता के लिए। लंबी रैली पहली बार मेरे ख्याल से सुनील जीती है मैच में अभिषेक दत्ता ने। इनफैक्ट पहला ऐसा पॉइंट जीता है अभिषेक दत्ता ने सेट, जो डैनियल फरीद के अनफोर्स्ड एरर के कारण नहीं आया हो। यही करना चाहिए अभिषेक को, रैलीज के लिए कंपेल करें डैनियल फरीद को, फिर गलती करने पे मजबूर करें। As easy as that. He was on the net, he was in position. 15. और डैनियल फरीद ने जिस तरह का फॉर्म हमें बताया है, he was never going to miss that. Change the shuttle. ये दूसरा मैच है इस मेंस टीम इवेंट में। पहला मैच निखिल श्याम शरण ने 2-0 से जीता, सीधे गेम्स में जीता। दूसरा मैच, ये इनफैक्ट पहला ही गेम चल रहा है, डैनियल एस फरीद भारत के लिए खेल चुके हैं। तो इन ऑल लाइकलीहुड 2-0 की लीड जैन यूनिवर्सिटी उम्मीद कर सकती है इस मैच के बाद, यानी कि डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए आइए अच्छा है। Service over. डिब्रूगढ़ के लिए बहुत पसीना बहाना पड़ेगा अगर वो अगले राउंड में जाना चाहते हैं तो। या तरित रंजन दास ने भी पहले मैच में बहुत तपस्या, बहुत मेहनत की थी, मगर निखिल श्याम श्रीराम का प्रदर्शन जबरदस्त रहा था, और उसी प्रदर्शन के चलते डैनियल फरीद ने भी जैन यूनिवर्सिटी का वर्चस्व कायम रखा है। काफी हिंदी की किताबें पढ़ रहे हैं आप। प्रतिनिधित्व, वर्चस्व, 5-16. माइंड ब्लोइंग ब्रो। Following in your footsteps, brother. Daniel Farid is looking in exceptional form here. 17-5, first game against Abhishek Datta. वर्चस्व से मुझे और आपकी बात सुन के याद आया कि आप अभी स्टार स्पोर्ट्स पर काफी सारी हॉकी कवर कर रहे थे। इंडियन हॉकी टीम को कौन सी घुट्टी पिलाई है आपने अपने दोस्तों को? ऑस्ट्रेलिया को हरा रहे हैं, नेदरलैंड्स को हरा रहे हैं,
बेल्जियम को हरा रहे हैं। ओलंपिक ईयर है। हम यहाँ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में भी हॉकी कवर करेंगे। उड़ीसा में है, हॉकी तो दिखाएंगे ही। और हॉकी और बैडमिंटन, दे विल बी टू स्पोर्ट्स जहां पर पूरे देश की नजरें होंगी। मेडल प्रोस्पेक्ट्स, रियल मेडल प्रोस्पेक्ट्स, बोथ हॉकी एंड बैडमिंटन. One of our prospects for the future is on the court right now, Daniel Farid. He's already represented India, and much like Daniel Farid, some of our young hockey players who have now made it into the team, such as Vivek Prasad Sagar, who's just won the FI's Rising Player of the Year award. Manpreet Singh, of course, went on to win the FI's Player of the Year award. तो हाँ, हॉकी और बैडमिंटन दोनों ही खेलों के लिए उज्जवल भविष्य नजर आता हुआ। को सिंधु से उम्मीद होगी कि रियो के अपने सिल्वर मेडल को गोल्ड में कन्वर्ट करें। और यहाँ पहला गेम थोड़ी सी मशक्कत के बाद ही सही डेनियल एस फरीद ने अपने नाम कर लिया है। 11-1 से वो लीड कर रहे थे इंटरवल के समय। 21-6 से उन्होंने ये पहला गेम अपने नाम किया है। थोड़ा सा बेहतर खेल जरूर दिखाया इंटरवल के बाद। अभिषेक दत्ता ने लंबी रैलीज में लेकर गए अपने प्रतिद्वंद्वी को, पर 21-6 ये बड़ा जाना पहचाना सा स्कोर है। सिड जी हाँ, बिल्कुल। एंड जैन यूनिवर्सिटी आर इन द लीड. डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी विल हैव टू फाइट वेरी हार्ड. वी विल सी यू आफ्टर अ वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. बैंगलोर के निवासी हैं, जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटका का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जैन यूनिवर्सिटी ने पहला मैच जीता था निखिल श्याम शरण के जरिए, निखिल श्याम श्रीराम के जरिए। और अब डेनियल एस फरीद अगर ये गेम भी जीतते हैं तो 2-0 की लीड जैन यूनिवर्सिटी को मिल जाएगी इस बेस्ट ऑफ 5 टाई में। सामने है डिब्रूगढ़, अभिषेक दत्ता संघर्ष कर रहे हैं। अच्छा डिफेंस किया था पहले, लेकिन इस क्रॉस कोर्ट का जवाब उनके पास नहीं था। लेफ्ट में पहले बैकहैंड से रिसीव किया, उसके बाद राइट में जाना उनके लिए मुमकिन नहीं था। यहाँ रणनीति को बदलना ही होगा यहाँ पर अभिषेक दत्ता को, क्योंकि ये मुकाबला डैनियल फरीद आसानी से जीत रहे हैं। 21-6 से पहला गेम जीता और ये 2-0 की बढ़त दूसरे गेम के शुरुआती क्षणों में। डैनियल फरीद स्पिन सुपर फॉर्म राइट फ्रॉम द स्टार्ट. Abhishek Datta trying really hard, but he's not being able to pull things back. Service over. थोड़ा सा किस्मत का सहारा भी चाहिए इस खेल में आपको, जो मिला है अभिषेक दत्ता को। इसकी उम्मीद नहीं कर रहे थे डैनियल फरीद की बॉल नेट को ऐसे क्लिप करके रोल ओवर कर जाएगी। इसमें कोई खिलाड़ी कुछ नहीं कर सकता। शटल, आई बेग योर पार्डन। काफी सारा वॉलीबॉल और बास्केटबॉल हमने कवर किया है। We saw a first-seeded team in the first encounter, which was Delhi University, and we are seeing one again. That is Jain University of Karnataka in the boys, and both of them look to be on top of their game and ready to fight and defend their titles. तो दोनों ही टीम्स को कुछ बहुत बड़ी चुनौती नहीं मिली है, एक्सेप्ट रंजन दास ने सेकंड गेम में 15 पॉइंट लिए थे। थोड़ा पसीना बहाया निखिल श्याम श्रीराम ने। और उस एक गेम को छोड़ दें तो हर एक गेम टॉप सीड टीम के लिए, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो कर्नाटक हो, वन वे ट्रैफिक रहा है। यहाँ डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी आसाम की उम्मीद होगी कि अभिषेक दत्ता भी तरित रंजन दास जैसा प्रदर्शन करे या उससे बेहतर। 3-3 की बराबरी पर दूसरा गेम और 4-3 की बढ़त ले ली है डैनियल फरीद ने। और यह मौका था अभिषेक के पास, सिर्फ नेट के करीब वो ले आए थे डैनियल फरीद को। यहां देखिए, ये अच्छा मौका था, लेकिन कुछ ज्यादा ही ताकत थी उनके इस शॉट में। और ड्रिफ्ट नहीं है इस समय, उसको आप दोष नहीं दे सकते अभिषेक। 5-3. 2-point lead for Daniel Farid. Got to cut these out. These are easy points for Daniel Farid. He started the match as a favorite. Abhishek Datta, the obvious underdog, working hard, but points have been difficult to come by.
हार जीत के इतर सिर्फ जो चीज सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी है वो है असम की एक यूनिवर्सिटी का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में क्वालिफाई करना, एक मेडिकल यूनिवर्सिटी का महाराष्ट्र से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में क्वालिफाई करना, एमबीबीएस करते हुए बैडमिंटन खेलना और इस नेशनल लेवल पर यूनिवर्सिटी लेवल पर आना। इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो सबसे बड़ा लक्ष्य है उसको सार्थक साबित करता है, विच इज सो गुड टू सी। दिस इज नॉट गुड टू सी। Service over. जब आपके पास आसानी से पॉइंट लेने का मौका हो तो गलतियां ऐसी हो जाती हैं बड़े बड़े खिलाड़ियों से भी। यहाँ कंप्लेसेंसी, 4 पॉइंट की बढ़त है डैनियल फरीद के पास। एक और पॉइंट अभिषेक दत्ता के खाते में। सिर्फ 3 पॉइंट की बढ़त अब रह गई है डैनियल फरीद के पास। अभिषेक दत्ता के पास ये सुनहरा मौका है गेम में वापसी करने का। 35. University Needs to win these longer rallies. Sunil, he has not been able to convert these longer rallies into winners. 5. और अगर आप डैनियल फरीद जैसे खिलाड़ी को लंबी रैली खेलने पे मजबूर करते हैं तो ये आपकी पहली जीत है अभिषेक, लेकिन आखिरी टच भी आपका होना चाहिए, आखिरी मुस्कान, वो पॉइंट आपको मिलना चाहिए। तो डैनियल फरीद आपको आसानी से पॉइंट नहीं देंगे। ये मौके, इस तरह के मौके आपको कैश करवाने होंगे। सबसे करीबी स्कोर चल रहा है इस मैच में अब तक 9-6। That will fill him up with confidence. The way he set up Daniel Farid to win that point. Abhishek Datta, excellent by him. Service over. Just 3 points in it. Play. The second game, 1-0. Jain University is leading in the tie. Had an opening there, Abhishek Datta. 3. अपने धुनों पे नचा रहे हैं डैनियल एस फरीद। पूरी रैली को कैसे डोमिनेट करते हैं अपनी कोर्ट कवरेज के साथ, कम से कम ताकत लगा के जिस तरह से मजबूर कर रहे हैं वो अभिषेक दत्ता को पसीना बहाने के लिए। पता लगता है कि ये खिलाड़ी भारत के लिए खेल चुका है। What a shot. 11. What a winner by Daniel Farid to take us into the mid-game interval. And at the mid-game interval, Jain University are looking so strong. They won the first match. They won the first game of the second match. And in the second game, Daniel Farid is leading Abhishek Datta 11-6 because of winners like that. The second part of the... स्वागत है सभी दर्शकों का। जैन यूनिवर्सिटी ने अपनी बढ़त बनाई रखी है यहाँ पर डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी आसाम के खिलाफ। पहला मैच जीत चुके हैं, दूसरे मैच का पहला गेम जीत चुके हैं और दूसरे गेम में डैनियल फरीद अभिषेक दत्ता को 11-6 से लीड कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है दोनों गेम्स में कि पहले गेम के इंटरवल के दौरान 11-1 स्कोर था, इस बार 11-6 था। तो डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के दोनों प्लेयर्स ने सेकंड गेम में बेहतर प्रदर्शन किया है। 90. मगर बेहतर प्रदर्शन काफी नहीं होगा, स्पेशली व्हेन यू कम अप अगेंस्ट प्लेयर्स ऑफ द कैलिबर एंड क्लास ऑफ निखिल शाम, श्रीराम एंड डैनियल फरीद। Especially players like Daniel Farid played the game at a higher level, very high level at such a young age. 2017 पोलिश ओपन में क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे थे। उसके अलावा कई BWF टूर्नामेंट्स में भारत को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। will you believe it, Sid? डैनियल एस फरीद एनाकोंडा मूवीज को काफी पसंद करते हैं, वैसा ही खौफ अपने विरोधी पर भी इनका नजर आता है। Interesting choice of cinema. He loves Shah Rukh Khan as well, 7. as all of us do. ये स्मार्ट वर्क, बिल्कुल कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी डैनियल फरीद को। और अब लग रहा है कि
ज्यादा पॉइंट्स जोड़ भी नहीं पाएंगे अभिषेक दत्ता अपनी किटी में। इस 7. गेम को जीतने से रोकना एक बात है, उसको डिले करना भी मुश्किल लग रहा है अभिषेक के लिए। Service over. 8-16. अभिषेक दत्ता 8-16 से पीछे। गुड एफर्ट, अच्छा लगा अभिषेक दत्ता को। इस तरह से 9-16. उन्होंने मेहनत करवाई डेनियल फरीद से और वो क्रॉस कोर्ट ड्रॉप के जरिए ये पॉइंट जीता। काफी करीबी मामला था। Into double digits is Abhishek Datta, 10-16. We have seen some wonderful net exchanges between these two players. How about that for a cross court? Service over. Superb winner by Daniel Farid. 17-10. He leads for Jain University. 4 पॉइंट दूर हैं ये गेम और ये मैच जीतने से और अपनी टीम को इस टाई में 2-0 की लीड दिलवाने से डैनियल फरीद। इसके बाद जो तीसरा मैच होगा वो डबल्स मुकाबला है। शॉट्स पे ज्यादा रिलाई नहीं कर रहे, स्मैशेस पे ज्यादा रिलाई नहीं कर रहे डैनियल फरीद। उन्हें मालूम है कि ये गेम, ये मैच जीतना बिल्कुल उनके बस में है, उनसे बस 2 ही कदम दूर है। एनर्जी कंजर्व करनी भी जरूरी है। यहाँ 2-0 की बढ़त, बस कुछ ही पॉइंट दूर जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटका के लिए। अभिषेक दत्ता 10-18 की लीड है यहाँ पर डैनियल फरीद के पास। एक और पॉइंट यहाँ पर डैनियल फरीद के खाते में। 19-10. Daniel Farid continues his excellent form. And we are on match point. 21-6 is Daniel Farid's first game score. 20-10, he's leading. Service over. That's been called in. So he's made to wait a little bit longer by Abhishek Datta of Dibrugarh University. Called out. थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा बट डेनियल फरीद को। तरेत रंजन दास की तरह क्या अभिषेक दत्ता भी 15 पॉइंट के मार्क तक पहुंच पाएंगे? गेम और मैच जीतना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन डिब्रूगढ़ के दोनों प्लेयर्स ने दूसरे गेम में थोड़ी ज्यादा मेहनत की है, लेकिन दोनों मैचेस जीते हैं जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटका ने। डेनियल एस फरीद थोड़ी सी ज्यादा उनको मेहनत करनी पड़ी सेकंड गेम में आकर, लेकिन भारत के इस खिलाड़ी ने 21-6, 21-12 से इस मुकाबले को अपने नाम किया है और जैन यूनिवर्सिटी 2-0 से आगे है इस बेस्ट ऑफ 5 टाई में। जी हाँ, पहला मैच 23 मिनटों में जीता था और दूसरा मैच 24 मिनटों में जीता है जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटका ने। कंफर्मेशन ऑफ द स्कोर लाइंस: 21-6 for Daniel Farid, 21-12 for Daniel Farid. He wins the match just like Nikhil Sham Sriram in back-to-back games, and Jain University are in the lead. It's a commanding lead, 2-0. Remember, if they win this one, the next one coming up, they would have won the tie. Saif Ali and Ganesh Vittalji will be taking on Chinmay Bora of Dibrugarh University and Sarbartha Gupta in the first men's doubles. It is a do or die match for Dibrugarh University Assam, which they just have to win if they want to be in the tie.
अब तक तीसरे गेम की नौबत नहीं आई है। हमने 4 मैचेस देख लिए हैं मेन और विमेन दोनों कैटेगरीज में, और अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी का विमेन इवेंट में वर्चस्व था तो जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटका का मेंस इवेंट में वर्चस्व है। 21-6 के बाद 21-12 ये दूसरे गेम का स्कोर था। डैनियल एस फरीद ने कुछ बहुत ज्यादा ताकत लगाए बिना इत्मीनान से सेकंड गेम खेला। उन्हें मालूम था कि वो इस मैच को आराम से जीतेंगे, तो बहुत ज्यादा ताकत उन्होंने लगानी मुनासिब नहीं समझी। इसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो डैनियल एस फरीद आखिरी डबल मैच खेलेंगे अगर उसकी नौबत आई तो। अन्यथा जिस तरह की फॉर्म रही है जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटका के प्लेयर्स की, हो सकता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी विमेन की तरह वो भी इस टाई को सीधे मैचेस में जीतें। वहां आपको 2 मैच जीतने थे, यहां आपको कम से कम 3 मैच जीतने हैं। और सैफ अली, गणेश विट्ठल जी इंतजार करेंगे और चिन्मय बोरा के साथ सरबरता गुप्ता। देखते हैं कि डबल्स में डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी कैसा खेल पाती है। सिंगल्स में तो सेठ कोई कंपटीशन ही उनके खिलाड़ी नहीं दे पाए। यहाँ निखिल श्याम, श्रीराम और डैनियल फरीद बेहतरीन प्रदर्शन रहा है दोनों ही खिलाड़ियों का। 21-6, 21-12 के स्कोर लाइन से अभिषेक दत्ता को डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी असम के इस खिलाड़ी को हराया है डैनियल फरीद ने। जैन यूनिवर्सिटी 2-0 की बढ़त है उनके पास। ये पहला अगर डबल्स का मुकाबला वो। अब सैफ अली और गणेश विट्ठल जी की जोड़ी भिड़ेगी चिन्मय बोरा और सरबरता गुप्ता से। और अगर ये मुकाबला भी जैन यूनिवर्सिटी का पेयर जीतता है तो 3-0 से वो इस टाई को जीत जाएंगे और आखिरी 2 मैचेस की नौबत नहीं आएगी। जैन यूनिवर्सिटी ने सिंगल्स में तो पूरी तरह से अपना सिक्का कायम रखा है निखिल श्याम, श्रीराम और डैनियल एस फरीद ने, लेकिन देखते हैं कि उनकी डबल्स जोड़ी में क्या गुण हैं। और चिन्मय बोरा, सरबरता गुप्ता इन पर दारोमदार है कि इस टाई को कम से कम जीवित रखें, क्योंकि ये मैच हारने का मतलब है कि आप यहीं से बाहर हो जाएंगे। ये पहला राउंड है मेंस टीम इवेंट में। चेयर अंपायर तैयार हैं सिद्धार्थ के साथ, मैं सुनील तनेजा, हम भी तैयार हैं। On my right, Jain University Karnataka, represented by Saif Ali and Ganesh Vidalji. And on my left, Dibrugarh University, Assam, represented by Chinmay Vora and Sarvata Gupta. Jain University to Saif Ali to Sarvata Gupta. Lawal, play. Saif Ali with the serve, first points on the board. 1 love. Just not able to get that over the line is Sarvata Gupta. 2 love now. And positive start here. It's 3-0 for Jain University. Dibrugarh University, Assam need to work hard here. Have to cut out errors like that. Superb shot, absolutely superb winner there by Ganesh Vittal ji. पहली बार थोड़ा सा प्रेशर दिखा है जैन यूनिवर्सिटी के प्लेयर्स पर। बॉडी लाइन स्मैश हमेशा से ही एक मुश्किल शॉट है रिटर्न करने के लिए, स्पेशली जब आप उसकी उम्मीद ना कर रहे हों। Close start. And it has to be because for Dibrugarh University this is a do or die clash. Oh yes, they cannot afford to lose this match. तो वो 0 से पहले ही वो पीछे हैं। पहला राउंड है मेंस टीम इवेंट का।
भुवनेश्वर से हमने शुरुआत की थी बास्केटबॉल और वॉलीबॉल के साथ, अब कटक में है बैडमिंटन का एक्शन। आज शुरू हुआ है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में। Saif Ali and Ganesh Vittalji have taken a 4-point lead over Chinmay Bora and Sarbarta Gupta. It's the first game of the third match in this tie. 19. Super by Sarbarta Gupta, and they've got the point. They deserve that point. They've worked so hard. Chinmay Bora at the baseline, and Sarbarta Gupta is returning those shots from the net really well. 19. Close. Only 3 points in it in the first game. And make that 2 points. Dibrugarh University are fighting and fighting hard at the opening of the third match. Flag. How about that for a return? They will have to do better on the serve. Dibrugarh University. 20. Easy return for Jain University. How about that for a winner? Ganesh Vittalji, the good hard smash. Match on by. Slightly over eager. Sarbarta Gupta there in the return. It's gone wide. Back to back errors, and it's 10-4. Service over. 5-10. 5-10. Chinmay Bora to serve. गुड बैकहैंड Service over. और 11-5 यानी कि मिड गेम इंटरवल तक अच्छी खासी हेल्थी लीड है वो जैन यूनिवर्सिटी के पास है। पहला गेम है, कहना थोड़ा जल्दी होगा, लेकिन स्कोर और कोर्ट में जो डोमिनेशन है वो बताता है कि डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी इस टाई को चौथे मैच तक लेकर जाएंगे। उसके आसार थोड़े कम दिख रहे हैं। जी हाँ, वर्चस्व जैन यूनिवर्सिटी का बिल्कुल बरकरार। Second half of the game coming up after a very warm welcome back. If you're just joining us, it's 11. the men's 5. teams championships here at the Khelo India University Flag. Games. Jain University have won their first 2 matches, are looking good in the third. That's why I say so. It's 12-5 in the first game of the third match for Jain 5. University Karnataka. पहले तो वो बॉडी लाइन स्मैश को जिस तरह से रिटर्न किया, उसके बाद ये डेस्परेट डाइव दोनों प्लेयर्स का पॉइंट फिर नहीं बचा पाया। मुश्किल है इस तरह के शॉट्स को रिटर्न करना सही प्रिसीजन के साथ। मेरा वो फेवरेट सबमरीन शॉट देखने को मिला। 13-5 इट इज। चुनौती ये है जैन यूनिवर्सिटी के प्लेयर्स के लिए, सिड क्या 10 मिनट के भीतर ये मैच जीतेंगे, 14. ये गेम एटलीस्ट। 5. Big call that, Sunil. 14-5 they are in the lead. Saif Ali and Ganesh Vittalji have started this first game so well for Jain University Karnataka. They were really good in the opening exchanges. Dibrugarh University Assam, Chinmay Bora and Sarbarta Gupta, but have since 15, not been 5. able to keep up with the pace of the match. It's a 10-point lead, 15-5 for Jain University of Karnataka. तो सिर्फ 7 मिनट हुए हैं इस गेम में अब तक। Play. डबल्स में आप लंबी 16, रैलीज की उम्मीद 5. करते हैं, लेकिन
अब ये भी एक तरफा ट्रैफिक बनता जा रहा है। डिफेंडिंग पर बहुत ध्यान देना होगा यहाँ पर डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी आसाम को। आसानी से विनर्स मिल रहे हैं। That's what I'm talking about. Well done, Chinmoy Bora. 16. Good winner coming in from deep in his own court. Look at the leap there and body line smash. ये बेहतर जजमेंट है। ड्राफ्ट की भूमिका फिलहाल नहीं है। 7. किसी भी टीम को किसी भी साइड कोई एडवांटेज नहीं है। 10 पॉइंट की लीड दोबारा। मेक दैट 11। 18. 7. 2 मिनट बाकी हैं सेट अभी 10 मिनट का टाइम होने में और 3 पॉइंट चाहिए जैन यूनिवर्सिटी को। अब 2 पॉइंट चाहिए। 19. 7. Service over. Just let that go, and that was 19. good judgment by Chinmoy Bora. गेम पॉइंट जैन यूनिवर्सिटी के लिए। Service over. 20. 10 मिनट के भीतर Game point. जो हमने उनको 8. टारगेट दिया था ये गेम जीतने का, बिल्कुल सेट लग रहे हैं उस चीज के लिए। There it is, the winner. 9 मिनट के भीतर जैन यूनिवर्सिटी ने पहला First गेम game अपने on नाम by किया है। पूरी Jain तरह से University, डोमिनेट किया Karnataka, कोर्ट को। 21-8. 21-8 से ये गेम उनके नाम, यानी कि ये टाई जीतने से बस एक ही गेम दूर है कर्नाटका की जैन यूनिवर्सिटी, जो कि टॉप सीड है मेंस टीम इवेंट में, याद रखिएगा। और एक भी गेम अब तक इस यूनिवर्सिटी ने ड्रॉप नहीं किया है। Confirmation of the scoreline then. They take the first game 21-8 कोका। एक गेम दूर है जैन यूनिवर्सिटी इस टाई को Second जीतने game. से। Lawal. डैनियल एस फरीद और निखिल श्याम श्रीराम ने अपने अपने सिंगल्स मुकाबले जीत लिए हैं और 2-0 की बढ़त जैन यूनिवर्सिटी के पास है। पहला गेम डबल्स मुकाबले में भी जैन यूनिवर्सिटी ने बड़े आसानी से 21-8 के स्कोर लाइन से जीत लिया है। सैफ अली और गणेश विठल जी ने बेहतरीन शुरुआत की है अपने मुकाबले में डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के चिन्मय बोरा और सरबर्था गुप्ता के खिलाफ। जब मौका मिला आसानी से किल करने का, 1-2. ये हम डैनियल फरीद की तरफ से भी देख चुके हैं। जब आपको आसान चांस मिलता है एक किल दागने का, दोनों प्लेयर एक ही साइड में थे, तो कई बार आप गलती कर जाते हैं। Service over. 3-1. सर्विस पे ही स्मैश 4-1. रिटर्न देने की गलत कोशिश थी। Rare service error. Service over. 2-4. और जैन यूनिवर्सिटी से आप इस तरह की गलती की उम्मीद नहीं कर सकते। वेरी वेरी रेयर। लीजिए धमाका। Service over. 5-2. Excellent work by Chinmoy Bora. Service over. 3-5. He's got some really hard smashes, Chinmoy Bora, and Jain University just could not defend that. It's gone over the net, and Jain University have conceded another point. 5. 4-5. It's another good start and another good game. The point is, can Dibrugarh University build on this start? Play. Service over. 6-4. दिस इज इंपॉर्टेंट। जब आपको पॉइंट मिलता है, सर्विस मिलती है, वहां से कितने लगातार पॉइंट आप ले सकते हैं, यही दिक्कत रही है अब तक डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी की। Service over. 5-6. लगातार सर्विस एक्सचेंज हो रही है। लगातार तीसरा ऐसा मैच है जब डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी ने सेकंड गेम में ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया है और पहली बार स्कोर टाई हुआ है आज जितने हमने बैडमिंटन के मुकाबले देखे हैं उसमें।
इनफैक्ट 6-6 को अब 7-5 कर दिया गया है। 8-5। 8-5। बस उस पल जब हमें लग रहा था कि बराबरी हो चुकी है इस मैच में, जेएन यूनिवर्सिटी ने फिर से 3 पॉइंट की बढ़त बना ली है। Good to see though, Dibrugarh University Assam is not giving up. They are continuing the fight. Chinmay Bora and Sarbata Gupta, full marks to them. सिर्फ 2 पॉइंट का अंतर रह गया है दोनों टीमों के बीच। 6-8 play। अच्छी जजमेंट इस बार डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के दोनों प्लेयर्स की। 7-8। ये रिटर्न करना चाहिए था, बिल्कुल आपकी जोन में था, आपने कनेक्ट भी किया लेकिन बड़े अधूरे मन से। रिटर्न हो जाता तो 8-8 की बराबरी हो जाती। Nivedha Muttukar from SRM University and Samsova, from University of 9। 8-8 तो पता नहीं, 9-9 की बराबरी हो सकती है। सेट दिस इज वेरी वेरी गुड कमबैक फ्रॉम चिन्मय बोरा एंड सरबरता गुप्ता। Trying for a cross court there was Chinmay Bora. It did not come off. 2 points in the lead, JN University. The closest game we've seen so far in any of the matches that we've covered, and full marks and a lot of credit goes to Chinmay Bora and Sarbarta Gupta for believing in themselves. 10 all. And that's what Star Sports also tells you. Believe. साथ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और खेलो इंडिया का मिशन आपको बताता है कि खेलिए, चुनौती दीजिए अपने विरोधियों को, चुनौती दीजिए अपने आप को, जिस तरह कल पीएम साहब ने भी कहा। और अब पासे पलट रहे हैं। पहली बार डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी ने मिड गेम इंटरवल में लीड बनाई है, 1 ही पॉइंट की ही क्यों ना हो वो। जी हाँ, 11-10 डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी असम बढ़त में है। पहली बार इस टाइम में किसी भी गेम में, किसी भी वक्त मैं कहूंगा, लीड में डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी। सो कंफर्मेशन ऑफ द स्कोर लाइन 11-10 फॉर डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी। स्वागत है आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में। दूसरा दिन, दूसरा सेशन है और दूसरा ही बैडमिंटन इवेंट आप देख रहे हैं। डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी जो ब्लू और व्हाइट में है, 1 पॉइंट की लीड में वो हैं मिड गेम इंटरवल के समय। इस गेम को जीतना, इस मैच को जीतना जरूरी है अगर वो इस टाई में बने रहना चाहते हैं तो। लाजवाब डबल्स मुकाबला देखने को मिल रहा है यहाँ पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में। पहला डबल्स का मुकाबला है इस टाइम में। जैन यूनिवर्सिटी 2-0 की बढ़त लेते हुए और 1 गेम जीत चुके हैं इस डबल्स के मैच में। 21-8 से पहला गेम को जीता था और दूसरे गेम में 11-11 की बराबरी पर जैन यूनिवर्सिटी और डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी असम। Wonderful net exchange. JN University are back in the lead. 11. नेट प्ले हमेशा ही देखने में अच्छा लगता है और अक्सर आप इस तरह की गलती कर देते हैं जब लगातार नेट प्ले चल रहा हो। गुड जजमेंट, अपने साथी की कॉल को सुना, पीछे हटके शटल को जाने दिया। It's a crucial time in this tie, not just this 14, match or this game. 11. They were in the lead at the mid-game interval. Now they are down by 3 points, Dibrugarh University, and make that 4 points. They are letting this match and this tie slip away. 11. सेकेंड सर्विस एरर Samsova. इस गेम में 12, जैन यूनिवर्सिटी का। 15.
जब लगा कि 4 पॉइंट की लीड से यहां इस गेम को अपने काबू में कर लेंगे, 15. वहीं लगातार 2 पॉइंट कंसीड कर लिए जैन यूनिवर्सिटी ने। Play. Service over. 16, 13. जैन यूनिवर्सिटी की सर्व। डिफेंड नहीं कर पाए सैफ अली और गणेश मित्तल जी की जोड़ी। 14, 16. लीड में जरूर है, मगर चिन्मय बोरा और सरबता गुप्ता बेहतरीन तरीके से लड़ रहे हैं। Service over. तो देखना ही है सेट कि क्या ये मैच तीसरे गेम में जाएगा। अगर वहां जाता है तो फिर डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी को एक आशा रहेगी कि ये टाई यहीं खत्म ना हो, कम से कम चौथे मैच की नौबत आए। ऐसे नहीं आएगी जब दोनों प्लेयर कोर्ट के एक साइड में होंगे और आप खुला मैदान दे देंगे अपने विरोधियों को। What a chance. It was a golden opportunity there for Jain University, which they have not taken. 3 points to win this tie 15 for Jain University. 3 points behind Dibrugarh University Assam. And third match underway. 16, 18. लग रहा है डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी तीसरे गेम में लेकर जाएगी इस मैच को, या नहीं 2 पॉइंट और चाहिए अब Service over. जैन 19, यूनिवर्सिटी को ये 16. टाई अपने कब्जे में करने के लिए। मैच पॉइंट, टाई पॉइंट जैन यूनिवर्सिटी के लिए। 20. Match point 16. Touching distance from the round of 8, Jain University. Will they win it in back-to-back matches? Not able to convert that Service over. on the first attempt. 17, 20. Again. And they do it in style. 3-0 से इस टाई को जीत लिया है कर्नाटका की जैन यूनिवर्सिटी ने, और तीनों के तीनों मैचेस उन्होंने स्ट्रेट गेम्स में जीते हैं। टॉप सीड टीम्स का वर्चस्व विमेन और मेन दोनों मुकाबलों में हमने देखा है। यहाँ निखिल श्याम श्रीराम ने पहला मुकाबला जीता, डैनियल फरीद ने दूसरा मुकाबला जीता जैन यूनिवर्सिटी के लिए, और सैफ अली और गणेश मित्तल जी की जोड़ी तीसरे मैच को 21-8, 21-17 से जीत चुकी है। जबरदस्त प्रदर्शन रहा है जैन यूनिवर्सिटी का। राउंड ऑफ 8 में प्रवेश कर चुके हैं। डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी ने कोशिश जरूर की, बट द प्लेयर्स फ्रॉम जैन यूनिवर्सिटी वर इन एक्सेप्शनल फॉर्म टुडे। कंफर्मेशन ऑफ द स्कोर लाइन सुनील, 21-8, 21-17। और ये भी एक कांस्टेंट फीचर रहा है, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी ने तीनों के तीनों मैचेस सेकंड गेम में ज्यादा अच्छा खेल खेला है। चौथे और पांचवें मैच की नौबत नहीं आएगी। निखिल श्याम श्रीराम, डेनियल एस फरीद, फिर सैफ अली और गणेश मित्तल जी की जोड़ी ने पहले तीनों मैचेस जीत के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है।